fluorimeter. So this is one such unit. It's a fluorimeter. This particular unit is from Toribio-Benivon. Fluorimeters are composed of various units, and they usually have a lamp. You can see the light there will provide the excitation source for the measurement. Then there is a unit that is called an excitation monochromator. It is going to select the wavelength that is used for the measurement. This part is the sample compartment, and once we run the measurement, we'll put our materials inside here. And the material fluoresces, and the emitted light will be collected by this other part of the instrument, which is an emission monochromator, and then the signal is going to be sent to a detector that right here is covered. In this case, the detector is the PMT, and is a photon multiplier tube that is going to collect the photons. This particular detector is cooled. These hoses run water to keep the temperature of the detector down to improve the signal to noise of the instrument. The fluorimeter also has a computer and a data processing unit that collects the signal from the instrument and also sends the command to control the gratings and the slits, which are used to select how to run the measurement. And there is also a normal computer that is using an interface for the operator to instruct the instrument to do the measurement in a certain manner. And the monitor shows a typical screen before running a measurement on this machine. Fluorimeter are used. ठीक है, तो यहाँ तुमने क्या देखा? इसने सबसे पहले जो अपने आप में स्पेक्ट्रम फोटोमीटर दिखाया, तो यहाँ पे इसने अपने को बताया लाइट सोर्स। तो देखना, जैसा अपने पास डायग्राम अपन ने देखा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पास लाइट सोर्स अपने पास हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में ये यहाँ पे इसके अंदर जो अपने असेंबली जो अपने डायग्राम के अंदर देखी थी वो था कि असेंबली इस स्वाट पहले पार्ट के अंदर है अपने पास, लेंस आ गया इसके अंदर, कलेक्टर आ गया, फिल्टर हो गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे इसने नीचे क्या अपने पास सैंपल, ये जो नीला ढक्कन है इसके अंदर क्यूवेट रखेंगे, माइक्रो क्यूवेट, उसके अकॉर्डिंग अपने सैंपल रखा है। फिर मैंने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग अपन वहां पे अपन जो स्कैटर लाइट आती है, तो यहाँ पे देखो ये अपने पास और इसके 90 डिग्री पे इधर की साइड में, तो इस साइड पे अपने पास क्या होगा, जो भी स्कैटर्ड होके जो लाइट निकली है वो लाइट इस पार्ट में आएगी। यहाँ पे लाइट आने के बाद में यहाँ पे एम्पलीफाई हो रहा है और उसके साथ यहाँ डिटेक्टर लास्ट में, ये जो कोट हटा के बताया इसने, इसके अंदर क्या है अपने पास डिटेक्टर। तो अपने पास कौन सा, पीएमटी। ठीक है, तो यहाँ पे पीएमटी वाला अपने पास फोटोन मल्टीप्लायर जो अपने पास डिटेक्टर है वो यहाँ पे लगाया हुआ है इसने। तो इस तरीके से ये अपने आप में कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में जब इसने यहाँ नीचे बताया तो यहाँ क्या बता दिया अपने पास, पीएमटी। उसके बाद नीचे इसी को इसने कनेक्ट किया हुआ है डिटेक्टर को इस डिवाइस से, सीपीयू जो अपने पास है इस डिवाइस से, और इस डिवाइस को इसने क्या डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करके मॉनिटर के फॉर्म में अपन ने इसको देख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन फ्लोरीमेट्री एपरेटस को देखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है देखो, on this machine. Fluorimeters are used to measure fluorescence spectra of material. This can be emission spectra or excitation spectra. And emission spectra can be used to determine quantity of fluorescence for material. And today we are going to discuss how a quantum field measurement is performed. We are going to discuss what is called the relative method. So we are going to measure one material with respect to another material that is known, that is being reported in the literature. And what we will want finally to do is to have all the quantities to fill in this equation. The quantum yield of the material is going to be the product of the quantum yield of the reference material, the ratio of fluorescent absorption properties, and we'll discuss those a little more in a moment, and then a factor that depends on the refractive index of the solvent in which the materials are dissolved. ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या करने वाली है, प्रैक्टिकल के फॉर्म में अपन को परफॉर्म करके दिखाने वाली है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो अपन ने रेफरेंस लिया हुआ है जिसके बारे में अपन को सब कुछ पता है, और एक अपन क्या कर रहे हैं, जो सैंपल जिसको अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो इसने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, तो यहाँ पे अपने पास जो अपन निकाल रहे हैं, तो क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव मेथड। तो इसके अंदर पर क्या है, रेफरेंस कंपाउंड ऑफ द नॉन क्वांटम यील्ड। तो नॉन क्वांटम यील्ड वाला अपने पास क्या हो गया, जिसकी अपन को फ्लोरेसेंस और एब्जॉर्बेंस सब अपन ने मेजर करके निकाल रखी है। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अपने पास याद है,
सैंपल एक्साइटेशन, जो एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ और मेजर कंडीशन अपन को मिलेगी वो अपन को निकालनी है। यहाँ पे अपने पास क्वांटम यील्ड क्या आ रही है, इसको अपने आप में फाई के फॉर्म में बताया हुआ है। एफ अपने पास क्या हो गया, इंटीग्रेटेड फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, तो एफ अपने पास फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ए क्या अपने पास हो गया, एब्जॉर्बेंस एट द एक्साइटेशन वेवलेंथ, तो अपने आप में जो अपने एक्साइटेशन वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंट क्या अपने पास आ रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन है, तो एन अपने पास। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन एब्जॉर्बेंट जो अपने आप में ये भी मेजर कर लेंगे, फ्लोरेसेंस अपन दूसरे कंपाउंड की भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ में जो अपन रिलेटिव क्वांटम यील्ड कितना मिल रहा है, ठीक है, कितना उसके अंदर वो क्वांटम के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर रहा है, वो भी अपन यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो इसी को अपन आगे देखते हैं। Here, we will show how to measure a fluorescence spectrum, and then we're going to obtain the integrated intensity of that emission. And then, as a separate measurement, we will need to determine the absorbance of the material at the traditional wavelength that is used to collect the emission spectrum. We need to prepare a solution of the material at concentration that is suitable for this type of measurement. The concentration is usually such that the absorbance of the material is relatively low. A typical number for the absorbance of a material is about 0.02. The reason for this is because we want the beam to be only very weakly attenuated when it passes through the material. And the reason is that we want the intensity to be as constant as possible, because we need to be able to compare the results of different materials, and the intensity of the fluorescence depends on the intensity of the light that is incident on the material. So if the absorbance is low, then the relative method can be applied. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा, अब इसने जो मेथड बताया, यहाँ इस मेथड में इसने एक चीज कही, क्या कहा कि यहाँ पे जो इसने कंसंट्रेशन ली है वो कंसंट्रेशन इसने काफी कम ली है। तो काफी कम लेने के बीच में अपने पास बेस क्या हो गया कि फ्लोरेसेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन होता है। अगर अपन मान लो कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो फ्लोरेसेंस अपने आप में ज्यादा लिख लेंगे, और उसके साथ में एक इफेक्ट और आता है अपने पास, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से एक ट्विंचिंग इफेक्ट जनरेट होता है। ट्विंचिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो फ्लोरेसेंस निकल रहा है कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए था, प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए था, मगर एक लिमिट के बाद में क्या होता है, जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से जो फ्लोरेसेंस जनरेट हो रहा था वो वहां पे जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या हो गया, इंटरनल फिल्ट्रेशन की वजह से वो जो फ्लोरेसेंस अपन को दिखना था वो अपने आप में धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अपन डाइल्यूट कंडीशन के अंदर लेंगे ताकि अपन को शार्प में एग्जैक्ट एब्जॉर्बेंट मिल जाए और फ्लोरेसेंस का इफेक्ट भी अपन को एग्जैक्ट अपने आप में मिल जाए। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे काफी डाइल्यूट फॉर्म में अपन लिखते हैं। सैंपल लेंगे, देखो आगे। In particular, for this type of absorbance, the beam is only going to be accumulated about 2% along the path of the beam inside the cuvette. These schemes show a square cuvette with the incident beam and then the emitted fluorescence. It should be pointed out that the fluorescence is emitted everywhere. It's just that the detector is going to see only a portion of the light that is emitted. And this portion has, again, to be the same for the sample and the reference material that has been chosen. ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक डायग्राम के फॉर्म में अपन को समझा दिया। क्या बताया कि जो इंसिडेंस बीम लाइट आ रही है किसके अंदर जा रही है, अपने पास क्यूवेट विद सैंपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन कौन सी वाली लाइट ले रहे हैं, जो परपेंडिकुलर वाली है। देखो यहाँ पे ऊपर से लाइट आई, जो अपन ने अभी डायग्राम में देखा था, इसने एपरेटस इधर था और डिटेक्टर उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये जो कोन बन रहा है अपने पास, कौन सा वाला, जो फ्लोरेसेंस कोन अपने आप में दिखेगा, उसी को अपन को डिटेक्ट करना है। Portion as, again, to be the same for the sample and the reference material that has been chosen. Now we are going to measure the fluorescence spectrum of a compound. I have here a solution of the dye in methanol. The concentration of the solution is relatively low, as we have mentioned before. The absorbance need to be approximately 0.02 or below, and this solution meets that criterion. So now I'm going to put this solution inside a cuvette. This quartz cuvette is
It has a sort of square cross section of 1 centimeter each side, and it's made of good quality quartz. And I'm wearing gloves because I don't want to touch the windows on this material because the oil from the fingers can damage over time the material. Okay, so now I'm going to take the solution and I'm going to put it inside the cuvette. So now I am going to close this and put the cap on the cuvette. Okay, so this is what we are going to use for our measurement. And one last thing before I put it inside the instrument, I want to clean the windows to make sure that there is no dust that is going to interfere with the measurement. So I'm going to take a little lens tissue and put some methanol on it. And I'm going to clean the window. And now we are ready for the measurement. We are now going to put our sample in. यहाँ पे इसने मेजर करने के लिए अपने पास मेथेनॉल के अंदर डाई को डिसॉल्व किया, ठीक है। तो डाई अपने आप में इसके अंदर हो गया, जो अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर क्यूवेट यूज किया था उसी तरीके का क्यूवेट अपने आप में यूज किया है। यहाँ पे जो क्यूवेट होगा वो अपने पास ग्लास का अपन यूज करते हैं जनरली, क्योंकि अपन को विजिबल लाइट देखनी है, तो ग्लास वाली क्यूवेट से भी अपना वर्किंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्यूवेट के अंदर इसने मेथेनॉल के अंदर डाई को डिसॉल्व करके उसने देख लिया जिसकी एब्जॉर्बेंस उसको पहले से पता है, ठीक है। Sample in the fluorimeter. I'm going to open the sample chamber and put the solution inside. And then we are going to close the lid again because we don't want light from the environment which is going to interfere with the measurement that we want to make. The fluorimeter lamp here is emitting light of all colors, and then the excitation monochromator is selecting one wavelength. In this case, we are using 350 nanometer light and is sending it onto the sample. If I put a card in here, you can see that this is the light that is reaching our solution, and this yellow-green color that you see is the fluorescence emitted by the material. So now the instrument is going to collect that light at all wavelengths and show. तो यहाँ पे इसने क्या बताया अपने आप में कि जब इसने सैंपल को रखा था उस टाइम पे इसने एक कोई वेवलेंथ को उसने सेलेक्ट किया है, सिर्फ एक मोनोक्रोमेटर लाइट अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने ब्लू कलर की जो लाइट आ रही थी वो मोनोक्रोमेटर लाइट थी, मगर उस सैंपल के अंदर जब लाइट गिर रही है तो अपने आप में कौन सी डाई के अकॉर्डिंग ग्रीनिश कलर उसका दिख रहा है, देखो। तो वो ग्रीनिश कलर क्या हो गया, उसके अंदर फ्लोरेसेंस उसके अंदर जनरेट हो रहा है, क्लियर। तो मोनोक्रोमेटर लाइट जो कि एक फिक्स वेवलेंथ की है उसको अपने आप में सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसने इसको कवर करा, तो कवर करके क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ताकि एक्सटर्नल जो आउटर लाइट है अगर उसका कवर नहीं लगाएंगे तो उसकी वजह से भी अपने आप में इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको कवर करके रखना जरूरी है। उसके बाद कंप्यूटर पे मॉनिटर this instrument and this software, we are going to the menu is called collect and choose experiment. We are going to have a window open up with various numbers. So we are going to select the excitation wavelength that we want to use for the measurement. In this case, it's 350 nanometer. यहाँ पे इसने जो लाइट मोनोक्रोमेटर लाइट ली उसकी वेवलेंथ कितनी ली इसने 350 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इमिशन सेक्शन के अंदर जाएंगे और इमिशन के अंदर एक्वाइजेशन जो अपने पास है इमिशन एक्वाइजेशन के अकॉर्डिंग वहां पे रीडिंग में अपन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने जो अपने पास यहाँ पे इसने यहाँ पे दिख नहीं रहा है, काफी छोटा है, मगर यहाँ पे अपने क्या हुआ एक्साइटेशन जो लाइट अपने आप में उसको अपन यहाँ पे सेट करेंगे। तो 350 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग अपन उसको सेट करेंगे। इसके बाद में जैसे अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रेंज बनाते थे, तो रेंज अपन क्या करते थे बेसलाइन बनाने के लिए कि जिसके अंदर अपना जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसकी पीक उसके अंदर आ सकती है। इसी तरीके से अपन ने अब यहाँ पे क्या कर दिया, जो अपने पास एक्साइटेशन जो अपने पास है एक्साइटेशन रेंज अपन सेलेक्ट कर दिया। तो एक्साइटेशन में अपन ने क्या किया, कौन सा मोनोक्रोमेटर अपन यूज कर रहे हैं, तो कौन सा वेवलेंथ 350 अपन ने पास नैनोमीटर अपन ने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद स्कैनिंग जो उसके अंदर बनेगी वो स्कैनिंग अपन को कितने रेंज के अंदर करानी है, तो यहाँ पे
355 टू अकॉर्डिंग 650 के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे इसके अंदर सेट कर दिया। तो अब स्कैनिंग अब ये सेट करेंगे यहाँ पे, तो स्कैनिंग स्टेशन अपने पास कितना रहता है, तो इसको अपन सेट करेंगे। for 1 second in each wavelength, and we are also going to select the opening of the slits. In this case, we have about 2 nanometer bandpass on the excitation monochromator and 1 nanometer bandpass in the digital monochromator. These numbers are going to be different when you have a different sample and you adjust them in order to have sufficient intensity to have a good signal to noise measurement. At this point, we enter a file name for the measurement and we can start the acquisition. You can अब यहाँ पे नंबर, सैंपल नंबर 1 2 3 अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वो भी अपन नंबर दे सकते हैं यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग उसने सेट कर दिया। अब जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो हार्डवेयर के अकॉर्डिंग जो अपने पास सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट to the position for the acquisition, and now you start seeing signal appearing on the screen. So we can see that we have 3 different graphs. The first graph is the signal that is collected by the photomultiplier tube, and this signal is proportional to the intensity of the light emitted by the sample, and it shows wavelength by wavelength. The acquisition occurs sequentially over time for each wavelength. We're also collecting in this second screen the intensity of the lamp that is exciting the material. And we do this to monitor if there are changes over time, and if we take then the ratio between this quantity and this quantity, we have our final measurement. It's the ratio between the signal intensity and the intensity of the light. And this is the number that we are going to use for the analysis. And the reason for obtaining the ratio between the signal intensity and the length intensity is to correct for possible fluctuations over time of the intensity of the light. Usually these are relatively small, but if you correct for this, you're only going to improve the quality of the data that you are collecting. And it's going to take 2 or 3 minutes to collect the measurement because we have set 1 second integration time per wavelength, and we're going from about 350 nanometer to 600 nanometer. The measurement is not complete. We have collected the whole emission spectrum of our material. This is the sample that we wanted to investigate. You can see here the emission intensity as a function of wavelength. At this point, we need to change the sample and measure the emission spectrum of the reference material for the quantum measurement and repeat it. अब जैसे इसने हार्डवेयर के अकॉर्डिंग वहां पे स्टार्ट किया था, सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, उसने जो अपने आप में इंटरवल दिया था 1 सेकंड के अकॉर्डिंग, तो 1 सेकंड इंटरवल के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, हर रीडिंग को मेजर कर रहा है, और उस मेजर रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अपन ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर कौन सी एप्लीकेशन के लिए अपन यूज कर रहे हैं, वैसी एप्लीकेशन यहाँ अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या अपन को चाहिए। तो अभी अपना बेसिक है कि अपन सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक्चुअल जो ग्राफ अपने आप बुक के अकॉर्डिंग है, जिसको अपन स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो उससे अपन कंपेयर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह का एक ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे the measurement collected under exactly the same conditions. So we are going to keep the same excitation wavelength and the same slit width for that material. Once we collect those 2 spectra and we collect the spectra of the solvent in which each one of those has been measured, we have all that we need to determine the quantum yield of the material. As I mentioned, we have selected 350 nanometer as the excitation wavelength. The choice of the excitation wavelength is done so that the material can absorb light at that wavelength. So 350 nanometer has to be within the absorption band of the compound. And you can see from the graph that in this case we are exciting somewhere on the absorption band. It doesn't have to be at the peak, but there has to be enough portion of molecules that are going to be excited for the fluorescence to be generated and have sufficient intensity for the measurement. ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक्साइटेशन वेवलेंथ, अपने पास चॉइस ऑफ द एक्साइटेशन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्साइटेशन वेवलेंथ शुड बी within the absorption band of the compound। तो यहाँ पे जो अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक्साइटेशन वेवलेंथ अपन ने कितनी सेलेक्ट करी थी, 350 नैनोमीटर। तो वो उस तरह की अपन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी एब्जॉर्बेंट जो अपने पास बैंड है वो
कंपाउंड का पूरा पूरा उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे अपने पहले सेलेक्ट किया हुआ है, तो आइडियली उसने सेलेक्ट किया है, तो सैंपल एक्साइटेशन वेवलेंथ टू बी यूज्ड फॉर द रेफरेंस एंड सैंपल कंपाउंड। तो वो अपने आप वेवलेंथ क्या होगी, दोनों के लिए होनी चाहिए, रेफरेंस के लिए भी होनी चाहिए और सैंपल के लिए भी अपने पास होनी चाहिए, तो दोनों उसी रेंज के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे 350 ने अपने आप में दे रखी है। emission spectra collected on the long wavelength side, ठीक है, of the excitation wavelength to avoid the strong scattering light from the excitation beam। तो यहाँ पे अपने आप में क्या कह रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा अपने आप में, एक तो अपने पास क्या कर रहा है, जब उसके अंदर इमिशन स्पेक्ट्रा अपने आप में मिलेगा तो वो किस साइड पे, लार्ज वेवलेंथ के साइड में अपन को मिलना चाहिए। तो अपने आप में क्या हो गया, ऑन द लॉन्गर वेवलेंथ साइड ऑफ द excitation wavelength to avoid the strong scattering light from the excitation beam। तो इसका कंसेप्ट ये हो गया कि जो भी अपन वेवलेंथ सेलेक्ट कर रहे हैं उसको अपन ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग रखा, मगर अपन क्या चाह रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रा मिले लार्ज वेवलेंथ वाला वो क्या मिले, उस जो अपने आप में जो अपने इमिशन अपने पास वेवलेंथ है उसके दूसरी साइड में जो अपने पास, जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ पे अपन को दिख रहा होगा, ये अपने पास क्या है, अपने पास इमिशन वेवलेंथ आ रही है, इमिशन वेवलेंथ के अपन इधर की साइड जाते हैं तो इधर की साइड में अपन को जो कंपाउंड है उसका ग्राफ इधर की साइड में अपने आप में पूरा मिल जाए, ठीक है। तो ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन क्या चाह रहे हैं, अवॉइड स्ट्रॉन्ग स्कैटर्ड लाइट। तो अपन क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसको अपन हटा दें, स्ट्रॉन्ग स्कैटर्ड लाइट, मतलब अपन क्या कह रहे हैं कि उसके साथ साथ जो लाइट है, जो अपने आप में और भी लाइट है अपने आप में, तो उसकी वजह से इंटरफेयर जनरेट होगा, स्कैटरिंग हो रही है। तो स्कैटरिंग में तो वो एक ही सिंगल लाइट नहीं है, अलग अलग वेवलेंथ की बहुत सारी लाइट है उसके साथ में स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है। तो अपन को तो क्या चाहिए, जो अपन सैंपल के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वो वाली स्कैटर्ड वाली लाइट उसके अंदर आ जाए, बाकी की उसके अंदर ना आए। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, अवॉइड द स्ट्रॉन्ग स्कैटर्ड लाइट फ्रॉम द एक्साइटेशन बीम। तो ये जो अपने पास सेलेक्टेड है उसके इधर की साइड वाला पोर्शन अपन को सेलेक्ट है। तो यहाँ पे अपने 350 वाला अपन ने यूज किया है। Complete our measurement. We have here the display of the fluorescence spectrum of the sample compound that we have run and the emission spectrum of the reference material for the quantum yield measurement. At this point, we can export the data in usually text format as column of numbers, where you have in one column the wavelength and the other one the intensity, and then you can use any. तो यहाँ पे अपन को दोनों पोर्शन मिल गए। इस पोर्शन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या मिल गया, एक तो अपने पास ये सैंपल वाला और ये अपने पास रेफरेंस वाला ग्राफ आ गया, ठीक है, जो अपन ने यूज किया है। Software like Excel, Polygraph, Origin to process the number and obtain the quantum yield result for this run. The information that is provided by the instrument need then to be processed to correct for certain effects. For example, the optical components in the instrument and the detector, the efficiency that depends on the wavelength, and so we need to correct for the response of the system. This is usually called the correction of fluorescence spectra. It can be done often either directly within the software that runs the instrument, or it can be done by the operator afterwards. Another thing that should be done is the subtraction of the contribution from solvents. These are usually relatively weak, but they should be measured and subtracted to obtain precise measurement. तो एक चीज और, जैसे अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में करते थे, क्या करते थे अपन, रेफरेंस वाले को अपन ने क्या कर दिया, सैंपल में से माइनस कर दिया, जो सॉल्वेंट अपन रखते थे और एक सैंपल वाला, वही कंसेप्ट अपन इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, डिटेक्टर एंड ग्रेटिंग्स डू नॉट हैव द सेम एफिशिएंसी एट ऑल वेवलेंथ। तो ऑल वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप में क्या कर रहा है, एक जैसी एफिशिएंसी अपन को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डिटेक्टर क्या कर रहा है, किस 1 सेकंड के इंटरवल के बाद में किस तरह की उसके अंदर वेवलेंथ आ रही है उसको वो डिटेक्ट कर रहा है। तो हर टाइम पे सेम चीज है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इतना सा वेरिएशन इसके अंदर आएगा बस। तो अपन क्या करें, रिजल्ट नीड टू बी करेक्टेड बाय ए फैक्टर दैट अकाउंट फॉर द वेवलेंथ रेस्पॉन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो एक कांस्टेंट फैक्टर अपन यहाँ पे अपन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसने ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया है, तो दो अपने पास में अगर दोनों टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग अपन लेंगे तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगी लगभग। देखो बस थोड़ा सा अपने आप में डिफरेंट अपने आप में नजर आएगा। तो अपने पास क्या कर रहे हैं अपन, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड द नॉइस should also be
सबट्रैक्टेड। तो अपन यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जो अपने पास नॉइज है, रमन इफेक्ट है और रमन स्कैटरिंग अपन को दिख रही है, तो उसकी वजह से जो अपने पास एक्सटर्नल इफेक्ट, नॉइज का इफेक्ट, नॉइज का मतलब जो एक्सटर्नल ग्राफ का इफेक्ट आ रहा है, वो भी अपन क्या कर सकते हैं, अगर पहले का कोई रेफरेंस अपन ने लिया हुआ है उसी तरह का, तो उससे अपन उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास सेम वैसा ही कंसेप्ट हो गया जो अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देख रहे थे, मगर यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो वेवलेंथ अपने पास आ रही है हर टाइम पे सेम आया, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्लोरेसेंस की वजह से जनरेट हो रही है, और फ्लोरेसेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट किस टाइप का है, कहाँ से कौन किस टाइम पे इमिट कर रहा है। हालांकि अपन कहते हैं कि काफी कम टाइम लगता है इमिशन के अंदर, मगर फिर भी वो माइन्यूट जो टाइम है वही डिफरेंट जनरेट करने के लिए काफी है। And this graph shows the spectrum as collected by the machine. The spectrum of the solvent is magnified 10 times to show that it is indeed weak. However, it has features, in particular, this band that you see corresponds to the Raman scattering due to the solvent. And then this curve is the response of the detector and the grading with wavelengths. So you can see that it is not a flat line. So we multiply the measured spectrum by the correction factor and we obtain the corrected spectrum, which is the blue line. This is what we would use for determining the quantum yield. ठीक है, यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा कि एक इफेक्ट और अपन को जहाँ दिख रहा है, देखो रमन स्कैटरिंग। तो ये अपने पास किसकी वजह से, जो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने डिसॉल्व किया हुआ है, तो वो भी अपनी एब्जॉर्बेंस की वजह से कुछ इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे ये डिटेक्टर की वजह से लाइन आएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि डिटेक्टर है तो डिटेक्टर भी कोई ऐसी चीज नहीं है, उसके अंदर भी कोई ना कोई मटेरियल है, ये सैंपल उसके अंदर जाएगा तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो वो वाला इफेक्ट भी अपन को दिखेगा। यहाँ पे इसने एक सैंपल के लिए रेड कलर से दिखाया, सॉल्वेंट के लिए ग्रीन कलर हो गया अपने पास, सैंपल माइनस सॉल्वेंट, तो ये अपने पास डॉटेड लाइन अपने पास क्लियर। कहाँ गई ये लाइन इसमें, यहाँ पे इसी के अंदर मिक्स है। ठीक है, दूसरा अपने पास फुली करेक्टेड स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल, ये अपने पास फुली अपने पास आ गया करेक्शन फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने पास। तो ये अलग अलग ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेंगे एक्चुअली, वो भी तुमने समझे। By the correction factor, and we obtain the corrected spectrum, which is the blue line. This is what we would use for determining the quantum yield. Usually the measurement is conducting on multiple concentrations of the same sample to have sort of repeat measurement. And then one way to process the result is to prepare a graph in which the intensity of the fluorescence and actually the integration and all the spectra that I've shown before needs to be integrated. And the total intensity is plotted here as a function of the absorbance of the sample. The ratio between these two quantities was present in the equation that I showed at the beginning. So if you have multiple samples at different absorbances, you can fit the data with a straight line, and the slope of that line is going to be the number needed in that equation. तो यहाँ पे अपन अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्वेंट सेलेक्ट करके भी, जो भी अपने पास है, देखो अलग अलग सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंट और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया। तो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिल गया कि एब्जॉर्बेंट अपने पास बढ़ी है, इंटेंसिटी भी इसी के अकॉर्डिंग अपने पास बढ़ रही है। तो ये अपने पास अलग अलग फॉर्म में स्ट्रेट लाइन अपने आप में, यहाँ पे भी अपन एप्लीकेशन भी यूज में ले सकते हैं। So if you have multiple samples at different absorbances, you can fit the data with a straight line, and the slope of that line is going to be the number needed in that equation. So this is for one example of the results can be obtained. Let's say that we have a sample and we have measured the fluorescence spectrum and the absorbance of the material. The absorbance is going to be measured by a different instrument, so it has to be done sort of separately. And the ratio of those two parameters is this number for sample number 1. And for the material that has been chosen as reference, the ratio of the fluorescent intensity and absorbance is this number. The samples and reference were dissolved in different solvents, so we need to consider the change in refractive index for the two materials. And we can insert the proper number in the equation that we have shown at the beginning. And in this particular case, we are going to obtain a quantum yield of about 0.74. So this material has a fluorescent yield of 74% as measured by this technique. Okay, तो यहाँ पे जो अपना स्टैटिक प्रैक्टिकल था, तो इस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सैंपल का एब्जॉर्बेंट अपन को पहले से याद था, फ्लोरेसेंस अपन ने निकाल लिया, तो उसका रेशियो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।
रेफरेंस का भी अपने पास पूरा पूरा ही याद था, तो वो अपने उसके अकॉर्डिंग भी निकाल लिया। इफेक्ट ऑफ फ्लोरीमेट्री के अकॉर्डिंग भी अपन ने फ्लोरेसेंस निकाल लिया। एब्जॉर्बमेंट अपन को याद है, ये वैल्यू मिल जाएगी। कौन सा सैंपल अपन ने यूज किया है, जैसे मेथनॉल लिया तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, साइक्लोहेक्सेन है तो उसका, तो ये अगर अपन फॉर्मूले में लिख देंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास कितना परसेंट फ्लोरेसेंस अपने पास जनरेट हो रहा है, उसको अपन कैलकुलेशन फॉर्म में अपन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या फ्लोरीमीटर है, तो फ्लोरीमीटर किस तरह का अपने पास होता है दिखने में। पहले सबसे पहले अपन ने उसके कंस्ट्रक्शन को विजुलाइज करके देखा, ठीक है, कैसे अपन क्यूवेट में उसको सैंपल को रख रहे हैं, डिटेक्टर किस तरह का अपने पास है, किस तरीके से अपन ग्राफ को मेजर कर पा रहे हैं, रिलेटिव मेथड के अकॉर्डिंग अपन किस तरीके से एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग सैंपल का अपन क्या कर सकते हैं, कितना परसेंट फ्लोरेसेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे हमने यहाँ पे समझा कि कंसंट्रेशन अगर सैंपल की बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या है, फ्लोरेसेंस एक लिमिट तक बढ़ेगा, एक लिमिट के बाद में अपने पास क्या होगा, फ्लोरेसेंस कम हो जाता है। इसका मतलब फ्लोरेसेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बट एट ए लिमिट, ओके, whenever the limit cross the fluorescence decrease, that is the effect of twinching। तो twinching इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पास वो इफेक्ट कम होगा। तो इसको यहाँ पे अपन ने समझा, इसलिए अपन जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो काफी डाइल्यूट होगा। नेक्स्ट वे जो अपन कलेक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वे के अकॉर्डिंग अपन कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्लो के अकॉर्डिंग जो अपने पास कौन बनेगा फ्लोरेसेंस, उसको अपन डिटेक्टर के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सैंपल हमने क्या किया, उसको सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिलाया, डाई जो अपने पास है उस डाई को मेथनॉल में डिसॉल्व किया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने उसका सैंपल बनाया। और उस सैंपल को हमने जब लाइट के अंदर देखा तो यहाँ हमने समझा कि एक्चुअल में मोनोक्रोमेटेड लाइट हमको सेलेक्ट करनी है, जो है एक्साइटेशन रेंज जो अपन एक्साइटेशन जो लाइट है जो अपन को वहां पे अगर कंप्यूटर में देखेंगे तो एक्साइटेशन रेंज में अपन सेलेक्ट करके वहां पे 350 नैनोमीटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कैटरिंग रेंज अपन को वहां सेलेक्ट करनी है। तो उससे पहले अपन क्या देखेंगे, मोनोक्रोमेटेड लाइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोनोक्रोमेटेड लाइट ब्लू कलर की आ रही थी, मगर फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको ग्रीन कलर दिख रहा है। इसको हम कवर करके क्यों रख रहे हैं, ताकि एक्सटर्नल लाइट का इफेक्ट हमको न दिखे। उसके बाद में हमने इसको डिटेक्टर को समझा। तो यहाँ पे डिटेक्टर के बाद में जो ग्राफ हमको बन रहे हैं, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक एक्साइटेशन वेवलेंथ सेलेक्ट किया, उसके बाद स्कैटरिंग रेंज